Radhika Gaur with the session number 12 of your chapter Heredity and Evolution. तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं in which we are going to discuss about question answers of SAT 2. क्वेश्चन आंसर्स ऑफ SAT 1 में हम इंडेक्स क्वेश्चंस के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और इस सेशन में हम जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. First here is index question which I thought is very important and I left in that session, so I am here gonna answer that question. Actually the question is, why are human beings who look so different from each other in terms of size, color and looks said to belong to the same species? क्यों वो human beings जो एक दूसरे से डिफरेंट नजर आते हैं, दैट इज उनका अलग अलग साइज के ह्यूमन बींग्स देखने को मिलेंगे आपको, अलग अलग कलर्स होंगे, अलग अलग उनके लुक्स होंगे, लेकिन फिर भी उन्हें हम सेम स्पीसीज से ही क्यों बिलोंग रहते हैं वो? यू हैव टू आंसर दैट एंड एक्चुअली आंसर इज बिकॉज दे हैव सिमिलर डीएनए सीक्वेंस एंड हैव डिसेंट फ्रॉम द सेम एंसेस्टर्स. दे आर belongs, I mean to say they are said to belong to the same species. क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे ह्यूमन बींग्स हैं सबके डीएनए सीक्वेंस सिमिलर होते हैं और सब एक सेम एंसेस्टर्स से ही इवॉल्व हुए हैं. देयरबाय उनके लुक्स डिफरेंस होते हुए, उनमें कलर डिफरेंस होते हुए, साइज डिफरेंस होते हुए भी वो एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं. तो क्लियर आपको आंसर पता चल गया, बिकॉज दे हैव सिमिलर डीएनए सीक्वेंस एंड हैव अराइज फ्रॉम द सेम एंसेस्टर्स. Next question is, in evolutionary terms, we can say which among bacteria, spiders, fishes and chimpanzee have a better body design? Why or why not? That is, जो evolutionary terms हैं उनको देखते हुए क्या हम बता सकते हैं कि बैक्टीरिया, स्पाइडर, फिशेज एंड चिंपैंजीज में से किसकी बेटर बॉडी डिजाइन होगी? क्यों एंड क्यों नहीं? Obviously हम बता सकते हैं, yes we can say that which among bacteria, spider, fishes and chimpanzee will have a better body design, and it is chimpanzee. Yes, chimpanzees will have a better body design because of their more complex body. जो chimpanzees हैं उनकी better body design होगी because उनमें क्या होता है, complex body present रहती है. Also, they are best adapted to survive the present day conditions and have proper division of labor in their body. जो chimpanzees होते हैं उनमें क्या होता है, they are best adapted to survive the present day conditions. वो adapted हैं, best adapted हैं to survive the present day conditions. Present day conditions में वो easily survive कर सकते हैं and they have division of labor in their body. और क्या है, उनकी जो body है उसमें division of labor exist करती है because वो multicellular organism होते हैं. Clear? We can say chimpanzees will have a better body design because of their more complex body. They are best adapted to survive the present day and they have proper division of labor in their body. Next question is, in Mendelian experiment consisting of breeding tall pea plants bearing violet flowers and short pea plants bearing white flowers, the progeny will bore violet flowers, but almost half of them were short, suggests that the genetic makeup for the tall parent can be depicted as. अभी हमें क्या बताना है, जो टॉल पेरेंट है उसके लिए बताना है कि कौन सा जो पैटर्न है वो होगा. तो दैट विल बी द आंसर सी, दैट इज कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू एंड कैपिटल डब्ल्यू. क्लियर? द पैटर्न विल बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन विद. यदि इवोल्यूशनरी टर्म्स में हम जो ह्यूमंस हैं वो किससे कॉमन है? चाइनीज स्कूल वाई से, चिंपैंजी से, स्पाइडर से या बैक्टीरियम से? तो ऑब्वियसली वी आर कॉमन विद द चाइनीज स्कूल वाई, बिकॉज हम दोनों ही एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट इज हम एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, दैट इज हम होमो सैपियंस हैं. तो देयरबाय वी आर कॉमन विद द चाइनीज स्कूल बॉय. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a study found that children with light colored eyes are likely to have parents with light colored eyes. On the basis, can we say anything about whether the light color eye trait is dominant or recessive? Why or why not? Actually क्या है, एक स्टडी में फाइंड आउट किया गया कि जो चिल्ड्रंस हैं जिनकी लाइट कलर्ड आईज हैं are likely to have parents with light colored eyes. उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी भी जो आईज हैं वो लाइटली कलर्ड आईज ही हैं. तो क्या इस बेसिस पे आप बता सकते हो कि जो लाइट कलर आई है ट्रेट है वो डोमिनेंट ट्रेट है या रिसेसिव ट्रेट है? Actually, from this study, we cannot make any inference whether light eye color trait is recessive or dominant. इस स्टडी से हम सिर्फ इसी स्टडी की बेसिस में हम ये नहीं बता सकते कि जो ट्रेट है वो रिसेसिव है या डोमिनेंट है, because as both the parents have light color eye, all
the children will definitely will have light color eye, क्योंकि सिंपल सा है, क्योंकि दोनों पेरेंट्स की लाइट कलर आए हैं। जब दोनों पेरेंट्स की लाइट कलर आए हैं तो क्लियर है ना कि जब दोनों पेरेंट्स की लाइट कलर आए हैं तो जेनेटिक के अकॉर्डिंगली, इनहेरिटेंस ट्रेट्स के अकॉर्डिंगली तो चिल्ड्रंस होंगे डेफिनेटली हैव लाइट कलर आए। देयरबाय स्टडी के बेसिस पे हम नहीं बता सकते जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द एरियाज ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन इंटरलिंक्ड। आपको बताना है कि जो इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन के जो एरियाज हैं उनको स्टडी करने के जो एरियाज हैं वो कैसे इंटरलिंक्ड हैं। Actually, the study of classification of various organisms give us an idea about the evolutionary history of the organism. जो क्लासिफिकेशन की दैट इज द जो क्लासिफिकेशन की जो स्टडी है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, वो हमें एक आइडिया देती है about the evolutionary history of the organism. Organisms which have certain similar structures are placed in one group. Simple है, वो organism जिनकी simple structures है उन्हें हमने एक डेफिनेट ग्रुप में रखा हुआ है, तो इसके थ्रू हम आराम से इजी कर सकते हैं, इंटरलिंक कर सकते हैं कि जो इवोल्यूशन है वो क्लासिफिकेशन है एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। Thus it can be calculated that the organism placed in one group may have evolved from the common ancestors and may have common evolutionary history. तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक ग्रुप में रखे गए हैं वो एक ही कॉमन एंसेस्टर्स से इवॉल्व हुए हैं और उनकी जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो भी कॉमन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल्स इन डिसाइडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को डिसाइड करने में जो फॉसिल्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है। Actually, fossils help us to determine the history of plants and animals. Fossils क्या करते हैं, plants और animals की हिस्ट्री को डिटरमाइन कर सकते हैं। They give us an idea about evolution, वो evolution के बारे में भी आइडिया देते हैं। They give us an idea about climatic condition of Earth in the past. Past में अर्थ की क्या climatic conditions थी उसके बारे में भी बताते हैं। And they also help us to analyze the geological time scale. और ये हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल को एनालाइज करने में भी हेल्प करते हैं। इसी बेसिस पे जो फॉसिल्स हैं वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को डिसाइड करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनके थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस कितना एज रही होगी उसकी, या जो फॉसिल है कितना ओल्डर होगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट एविडेंस डू वी हैव फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम इनएनिमेटेड मैटर। क्या एविडेंस हमें मिले जिनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो ओरिजिन है लाइफ की वो इनएनिमेट मैटर से हुई है। एक्चुअली लाइफ मस्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स व्हिच वर प्रेजेंट ऑन अर्थ सून आफ्टर इट वाज फॉर्म्ड। जो लाइफ है वो कहाँ से डेवलप हुई होगी, लाइफ वहां से डेवलप हुई होगी, उन सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से डेवलप हुई होगी जो कब प्रेजेंट थे, जब अर्थ फॉर्म हुई थी उस टाइम पे जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे उन्हीं से हमारी जो लाइफ है वो डेवलप हुई होगी। Miller and Urey's experiment provide the evidence for the origin of life from inanimate matter. और जो मिलर और यूरेस हैं उन्हीं के एक्सपेरिमेंट एविडेंस देते हैं इसको डिफाइन करने के लिए। इसको एविडेंस के तौर पे उन्होंने रखा कि जो लाइफ है वो इनएनिमेट मैटर से गेन हुई है, ओरिजिनेट हुई है। और वो क्या एक्सपेरिमेंट था? एक्चुअली they created an atmosphere similar to that which exists on early earth. उन्होंने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जो कि सेम ऐसा था जो पहले हमारे अर्थ थी, दैट इज जब अर्थ फॉर्म हुई थी उस टाइम पे जैसा अर्थ पे एटमॉस्फेयर रहा होगा उन्होंने वैसा ही एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया ओवर वाटर इन एन एपरेटस। एक एपरेटस में एक वाटर लिया, वाटर के ऊपर उन्होंने ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। जो एटमॉस्फेयर था उसमें हाइड्रोजन गैस अवेलेबल थी, अमोनिया अवेलेबल था, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वाटर वेपर्स अवेलेबल थे, बट कोई भी ऑक्सीजन वहां पे अवेलेबल नहीं थी। क्लियर? And this was maintained at a temperature just below 100 degrees Celsius and sparks were passed through the mixture of gases to stimulate lighting. ये जो हमारा उन्होंने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया इसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखा गया और जो मिक्सचर था गैसेस का उसमें से स्पार्क को पास आउट किया गया ताकि जो लाइटनिंग है उसे स्टिमुलेट किया जाए। क्लियर? That this was maintained at a temperature just below 100 degrees Celsius and sparks were passed through the mixture of gases to stimulate lighting. At the end of the week, 15% of the carbon from methane had been converted to simple carbon compounds including amino acids. क्या होगा जब एंड ऑफ अ वीक हुआ, दैट इज आफ्टर एंड ऑफ अ वीक, एक वीक के बाद उन्होंने देखा कि लगभग 15% कार्बन जो है वो मीथेन से
सिंपल कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गई, जिसमें अमीनो एसिड्स भी इंक्लूडेड थे। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि जो मीथेन है उससे जो कार्बन है वो सिंपल कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो रही है। दैट इज ऐसे ही जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनसे जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई होगी। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था जो एविडेंस देता है कि जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अर्थ पे प्रेजेंट थे उस टाइम पे, उसी से जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain how sexual reproduction give rise to more variable variation than asexual reproduction. How does this affect the evolution of those organisms that reproduce sexually? Actually आपको ये बताना है कि कैसे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ज्यादा वेरिएशंस को देता है देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितनी वेरिएशंस नहीं मिलती उससे ज्यादा वेरिएशंस हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिल जाती हैं। एंड कैसे ये जो अफेक्ट है, ये इवोल्यूशन जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिम्स को कैसे अफेक्ट करता है। एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स हैं उनका फ्यूजन होता है। द ऑफस्प्रिंग्स शो वेरिएशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ जीन सेगमेंट। जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो वेरिएशन शो करते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स। वो क्यों करते हैं, क्योंकि जो क्रॉसिंग ओवर और एक्सचेंज ऑफ जीन सेगमेंट्स के क्रॉस होते हैं और उनमें एक्सचेंज होता है, इसीलिए वो वेरिएशंस शो करते हैं। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म रेज आर द एग्जैक्ट कार्बन कॉपीज ऑफ पेरेंट्स। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो एग्जैक्ट कार्बन कॉपीज होते हैं पेरेंट्स की। क्लियर कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें गैमेट्स का फ्यूजन होता है, एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो जीन है उनमें क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन सेगमेंट में एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से वेरिएशंस आ जाते हैं। जो वेरिएशंस होते हैं उनके सर्वाइवल रेट को बढ़ा देते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स की कार्बन कॉपीज होते हैं, जो हमारे प्रोजेनी होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स हैं उनकी कार्बन कॉपी कोई भी प्रोजेनी नहीं हो सकता, उसमें वेरिएशंस आते ही आते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट वेरिएशंस इन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इंश्योर्ड इन द प्रोजेनी। कैसे किसी भी प्रोजेनी में जो इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन है मेल एंड फीमेल का उसे इंश्योर किया जाता है। So the thing is, the zygote which is formed by the fusion of male and female gamete has equal genetic contribution from male and female parents, as both parents contribute equal content of chromosomes. क्या होता है, जो zygote फॉर्म होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, वो कैसे फॉर्म होता है, वो एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट के फ्यूजन के थ्रू होता है। और जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं उनमें जो जेनेटिक कंट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल रहता है। दैट इज जो पेरेंट्स हैं, दैट इज जो मेल पेरेंट है, जो फीमेल पेरेंट है, दोनों ही इक्वल कंटेंट जो होता है क्रोमोसोम का उसे कंट्रीब्यूट करते हैं। इक्वल क्रोमोसोम्स के कंटेंट को कंट्रीब्यूशन की वजह से जो जेनेटिक कंट्रीब्यूशन है वो स्टेबलाइज रहता है। दैट इज इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन अवेलेबल रहता है इन द प्रोजेनी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज only variations that confer an advantage to an individual organism will survive in a population. Do you agree with this statement? Why or why not? क्या जो ये वेरिएशंस कन्फर करती हैं किसी भी एडवांटेज, आई मीन उससे जो वेरिएशंस हैं उनकी वजह से कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वो है वो पॉपुलेशन में इजीली सर्वाइव कर सकता है? क्या आप इस कंसेप्ट से, इस स्टेटमेंट से एग्री हो? यस, आई एग्री, मैं तो एग्री हूँ, लेकिन आपका पता नहीं, आपको खुद सोचना होगा कि क्या वेरिएशंस की वजह से जो पॉपुलेशन है इंडिविजुअल की, कोई भी इंडिविजुअल पॉपुलेशन में सर्वाइव बेटर कर सकता है या नहीं। मैं एग्री हूँ, मैं एग्री इसलिए हूँ बिकॉज मेरे को पता है कि जो वेरिएशंस हैं वो एक एडवांटेज रखती हैं, क्योंकि यदि वेरिएशंस नहीं होंगी तो जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑब्वियसली उनका सर्वाइवल रेट कम हो जाए, क्योंकि यदि कोई भी हमारा सडन चेंज आता है एनवायरनमेंट में तो कुछ वेरिएशंस जो होंगी वो यदि उसे टॉलरेट कर पाएंगी तो वो लाइव रहेंगी, कुछ वेरिएशंस जो टॉलरेट नहीं कर पा रही होंगी डेथ हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होगा कि सारी की डेथ हो जाए, दैट इज सब वेरिएशंस फिनिश हो जाए। इसीलिए मेरे लिए जो वेरिएशंस हैं वो एक सर्वाइवल रेट को बढ़ाती हैं। बट यू हैव टू आंसर दैट योरसेल्फ, दैट डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट और नॉट। बाय द वे, व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने जो क्वेश्चन आंसर्स थे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस के वो फिनिश कर लिए। By the way, in next chapter I'll be meeting you. Till then, good luck.